Okay, good morning. Am I audible to you guys? Pooja, Good Simranjit, morning, ma'am. Lisa. Very good morning. Am I audible? Yes, So you guys are in semester, which semester? third semester, ma'am. Third semester. This is your first class? Yes, Okay, Yes. Pooja. Simranjit, what about you? This is your first class? Yes, ma'am. Okay, and Lisa Nawab? Lisa, which semester, कौन सा semester है आपका? Lisa Nawab, can you hear me? Okay, Simranjit Kaur. हाँ जी सिमरन मैम, यस मैम, बच्चे जहां आपने यस अपना मैम। नेम एंटर किया है जूम में उसके आगे यू हैव टू एंटर योर पीटीयू रोल नंबर देन ओनली यू विल बी अलाउड टू एंटर द क्लास ओके मैम, ओके। ओके फटाफट से हाँ जी एग्जिट मैम। कीजिए सिमरनजीत कौर के आगे जो आपका पीटीयू का रोल नंबर है नाम ऐसे ही लिखे रहने देना है उसके आगे पीटीयू का रोल नंबर लगाना है सो दैट योर अटेंडेंस वुड बी मार्क्ड ओके मैम। ओके डू इट क्विकली पूजा हाँ जी, ओके मैम। yes, ma'am. पूजा ये 412005 आपका पीटीयू रोल नंबर है This is my membership number, ma'am. हाँ कॉलेज की तरफ से जो मुझे एडमिट कार्ड पे प्रोवाइडेड हुआ था वो अभी मेंशन किया मैंने। ओके आपके पास पीटीयू का रोल नंबर है अपना अभी नहीं है मेरे पास। व्हाई यू हैव नॉट गिवन द एग्जाम इन द प्रीवियस सेमेस्टर मैम मैं लेटरल एंट्री स्टूडेंट हूँ। ओके ठीक है लीजा नवाब व्हाट अबाउट यू लीजा कैन यू हेयर मी अनम्यूट योरसेल्फ अनम्यूट एंड देन स्पीक लीजा संदीप Good morning, ma'am. very good morning sandeep this is your ptu roll number the one you have mentioned in front of your name Membership number है मैम लेटर एंट्री है okay okay fine simran simranjeet सिमरनजीत कौर यस मैम। बच्चे अपने आपका रोल नंबर नहीं डाला है नाम के आगे हाँ जी मैम, मैं 1 मिनट डाल रही हूँ बच्चे मैम आपको अभी। क्लास एग्जिट करनी पड़ेगी उसके लिए ना यू विल हाँ हैव जी मैम, कर रही हूँ। हाँ जी। एग्जिट द क्लास okay let us wait for a few minutes for the other students and then we will continue the class who is this redmi in the class who have just entered redmi Ma'am, Hina. हाँ जी change your name enter your name and enter your roll number in front of your name then only you will be allowed to enter the class I cannot put attendance for redmi until and unless I'll know your name and roll number I cannot put your attendance exit the class change your name when you will start the zoom class they will give you an option of changing the name kindly put your name along with your roll number nobody will mute the mics unmute your mics all of you unmute
अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, ये रेडमी कौन है बच्चे, ये समझ आ रहा है आपको? मैंने आपको बोला है एग्जिट द क्लास एंड चेंज योर नेम। Rajni and Diksha, Good morning, ma'am. very good morning. Have you checked your results of the midterm exam? जिसके पीछे टीवी चल रहा है, काइंडली चेंज योर प्लेस और म्यूट द टीवी। हाँ जी रजनी, रिजल्ट चेक कर लिया बच्चे मिड टर्म का? नो मैम। क्यों नहीं किया बेटा? फेडीना पे 4 दिन से आपका रिजल्ट आया हुआ है। मैम वो ओपन नहीं हुआ था, देखा तो था, ओपन नहीं हुआ। आपको मैंने उस दिन भी बोला था लॉग आउट करके सबका ओपन हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपका ना हो। अगर आपने एग्जाम दिया है तो लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर रहे हो तो इट इज गेटिंग लॉग्ड इन। ओके मैम। आपने ट्राई नहीं किया? मैम किया था उस दिन, हाँ कल जी देखा था दीक्षा, मैम रात में। दीक्षा अनम्यूट योरसेल्फ। दीक्षा, Yes, ma'am. रिजल्ट Yes, चेक कर ma'am. लिया? Yes, ma'am. कोई डाउट क्वेश्चन पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में? डू यू हैव एनी क्वेरीज? No, ma'am. ठीक है, आता है पूरा पेपर? मैम जितना आता था उतना किया। ठीक है, बाकी का कब तक आएगा? मैम आ जाएगा। कब तक? Don't delay doing your syllabus because your next midterm are not very far, and in the next term all the units which you have done earlier also will be included. So kindly be prepared for the next one. Okay, so let us start the today's class. So those students who are new in the class, I would like to tell them that we are doing the third unit of the syllabus, that is chromatography. We have already done unit 1, 2 and 4, so we will see how it would be done to you guys. But now we are doing unit 3, which is chromatography. And in the chromatography unit, we are on the second topic, that is thin layer chromatography. So, any doubt to the earlier students in the paper chromatography? Those who have attended the last lecture, any doubt in the paper chromatography? Guys, unmute yourself and answer. Any doubt in the topic paper chromatography? No ma'am. Okay. So, next type of chromatography is thin layer chromatography. Okay, paper chromatography may basically what we have studied is that which medium acts as a stationary phase and which one acts as a mobile phase. And to perform the chromatography in the paper chromatography, we use different kind of papers like cellulose acetate paper or the Whatman filter paper 1 or Whatman filter paper 3. So on the basis of after using this paper, on the basis of how chromatography is being done, chromatography was divided into two categories: the ascending chromatography and the descending paper chromatography. Ascending के अंदर the solution moves or rises up on the paper, whereas in descending it moves down the paper. Apart from this, there are two other types of paper chromatography, that is one dimensional chromatography and the two dimensional chromatography. Now, if we talk about thin layer chromatography, in the thin layer chromatography, different types or different grades of the silica gel, इसके अंदर जो हमने medium use करना है, that is a silica gel. डिफरेंट टाइप की सिलिका जेल को एक ग्लास प्लेट के ऊपर उसकी लेयर बना दी जाती है. वी प्लेस द सिलिका जेल ऑन द ग्लास प्लेट और उसके बाद उसको एक्टिवेट कराया जाता है बाय एक्सपोजिंग इट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर.
जो सिलिका जेल होती है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे यू कैन नॉट परफॉर्म एनी क्रोमेटोग्राफी इन दैट, क्योंकि आपको पता है जो जेल होती है उसके ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जेल इज नॉट अ लिक्विड, इट इज अ सेमी सॉलिड, राइट। अगर आप जेल के अंदर कोई पानी भरोगे तो वो जेल एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी, उस पानी ऊपर रह जाएगा। हम नहीं एब्जॉर्ब करते, हाँ जी, पानी तो नहीं एब्जॉर्ब करते। पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, बिकॉज जेल के अभी जो अगर उसको रूम टेम्परेचर पे आप देखोगे तो जो जेल के पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली बाउंड टू ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंडेड है, तो उनके बीच में स्पेस नहीं है किसी चीज की जाने की, ठीक है। लेकिन अगर उस जेल को आप हाई टेम्परेचर को एक्सपोज करवाते हो, देन द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स ब्रेक डाउन, और उसका जो सेमी सॉलिड फॉर्म होता है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, जो उसके पार्टिकल्स की पैकिंग होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। सो बेसिकली इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्रोमेटोग्राफी ऑन अ जेल, आपको पहले जेल को जो है हाई टेम्परेचर से एक्सपोज करवाना पड़ेगा, ठीक है। So the medium which you are taking for the thin layer chromatography is your silica gel, and that silica gel has to be layered on a glass plate and then it will be activated at the high temperature. उसके बाद जो भी आपका सैंपल है, अब बेसिकली हम क्रोमेटोग्राफी को यूज कर रहे हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। आपके पास कोई मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर सपोज करो आपके पास कोई प्रोटीन का मिक्सचर है, आपने उसके अंदर प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स, आपने हर एक अमाइनो एसिड को अलग करना है उस मिक्सचर में से। सो यू कैन यू कैन मेक यूज ऑफ द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल है इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, या किसी प्रोटीन के मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हैं, या लिपिड्स के को सेपरेट करना चाहते हैं, या फिर कोई ड्रग्स का कोई मेडिसिन है उसके अंदर डिफरेंट ड्रग कंपोनेंट्स हैं, उसको आप अलग अलग कंपोनेंट्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू इट बाय यूजिंग द क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। जब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हमें एक्टिवेटेड सिलिका जेल मिल गई, उसके बाद हम जो सैंपल होगा विच इज ऑफ लिपिड्स या अमाइनो एसिड्स का, ड्रग्स का, इट मे बी रिजॉल्व बाय पार्टीशनिंग देम बिटवीन द वाटर, उसको हम पार्टीशन करवा देंगे ऑन द वाटर, और वो जो वाटर है इट इज बाउंड विद द सिलिका जेल, सिलिका जेल के ऊपर जो वाटर है उस पे आपने अपना सैंपल को कर देना है, और आपका जो ऑलरेडी जो भी आपने इंस्ट्रूमेंटेशन लिया है क्रोमेटोग्राफी का, वहां पर आपका प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम विल एक्ट टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स और सेपरेट द पार्टिकल्स इन योर मिक्सचर। जब आप इस चीज को अपने सैंपल को लोड करवाओगे इसके अंदर, तो आपको उसको डाई करवाना पड़ेगा, या फिर आपको उसको फ्लोरेसेंस देना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से, ताकि आप देख सको कि आपकी जेल पे अलग अलग स्पॉट्स कहाँ पर बने हैं। So after loading the sample, after running it in the solvent system, आप visualize कर सकेंगे spots को, which will require specific stain या फिर specific reagent। अब हम क्यों बोल रहे हैं स्पेसिफिक स्टेन, क्योंकि फॉर सपोज करो अगर अमाइनो एसिड्स है तो आप यूज करोगे निनहाइड्रिन रिएजेंट, लेकिन अगर लिपिड है, लिपिड को अगर आपने डाई करवा दिया निनहाइड्रिन रिएजेंट से, तो वो उसको आपका कलर्स नहीं शो करेगा, बिकॉज इट विल नॉट रिएक्ट विद द निनहाइड्रिन। तो देयर यू हैव टू यूज स्पेसिफिक रिएजेंट्स फॉर द स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, लाइक निनहाइड्रिन रिएजेंट को यूज किया जाता है अमाइनो एसिड्स के लिए, लिपिड्स को यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? थोड़ा सा पता चला थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या बात कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हमने अपना जो सॉलिड सपोर्ट लिया है, सपोर्ट किस चीज का लिया है, किस चीज के ऊपर हमने अपनी जेल डाली है, ग्लास के ऊपर, ठीक है।
पेपर क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड सपोर्ट क्या था? किस चीज पे क्रोमेटोग्राफी हो रही थी? हाँ जी, व्हाट इज द सॉलिड सपोर्ट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी? पेपर बच्चे, सॉलिड सपोर्ट पेपर है। किस चीज पे आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो रही है? पेपर के ऊपर हो रही है ना। थिन लेयर में क्या है? थिन लेयर में सॉलिड सपोर्ट क्या है? ग्लास। ग्लास। ग्लास, ध्यान दो क्लास में। थिन लेयर के क्रोमेटोग्राफी में द सॉलिड सपोर्ट इज ग्लास, और जो आपका स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज मतलब जो कि आपका मूव नहीं करेगा, तो आपने जो सिलिका जेल डाली है दैट इज योर स्टेशनरी फेज विच विल नॉट मूव इन द क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जो चीज मूव करेगी वो होता है मोबाइल फेज। मोबाइल का मतलब ही क्या होता है? द वन विच कैन मूव। तो आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम है, जो मिक्सचर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और वाटर का, दैट विल एक्ट एज अ मोबाइल फेज। ठीक है, हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर मोबाइल फेज सेम रहता है। जो चेंज होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, बिकॉज पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज पेपर हो जाता है, वॉटमैन नंबर 1 या फिर सेलुलोज एसीटेट, और आपका थिन लेयर के अंदर स्टेशनरी फेज जो होता है वो सिलिका जेल हो जाता है। ठीक है जी। यस मैम। अब मैंने बोला कि मोबाइल फेज के अंदर जो आपका सॉल्वेंट सिस्टम होता है, दोनों ही क्रोमेटोग्राफी में वो मोबाइल फेज होता है सॉल्वेंट सिस्टम, लेकिन बिकॉज दीज टू टेक्निक्स आर डिफरेंट, जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर सॉल्वेंट सिस्टम का एग्जाम्पल पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल इथाइल एसीटेट, पायरिमिडीन और वाटर। लेकिन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो चेंज हो जाता है, इसके अंदर जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अंदर हम वी कैन टेक द सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ क्लोरोफॉर्म, मीथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। और क्लोरोफॉर्म आपका रहेगा अगर 65, तो मीथेनॉल 25 एंड एसिटिक एसिड रहेगा 4। द रेशियो विल बी 65:25:4। थोड़ा सा क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। क्लोरोफॉर्म 65% है और मेथनॉल 25 है, और एसिटिक एसिड कितना था मैम? 4 बचे, 4। ओके। और ये परसेंट की बात नहीं हम कर रहे, ये हम किस रेशो में डालेंगे, ये हम वो बात कर रहे हैं। जी। ठीक है, अगर अगर आपने क्लोरोफॉर्म को 65 लिया है, ठीक है, सपोज करो, तो आपको उसके अंदर मीथेनॉल जो है वो 25 डालना है, और आपने एसिटिक एसिड जो है वो 4 डालना है। डालना है। ठीक है, ओके। तो जी मैम। बेसिक प्रिंसिपल हमारी क्रोमेटोग्राफी का थिन लेयर का क्या है कि डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की वजह से एंड पार्टीशन कोफिशिएंट की वजह से ऑफ द कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट का डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है कि वो किस हद तक खुद को एड्सॉर्ब करते हैं। हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट अलग अलग हद तक एड्सॉर्ब होता है। सो डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन और जो उनका पार्टीशन कोफिशिएंट है बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज, उसके बेसिस पे वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है जी। जी मैम। लिपिड्स को आप थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं, बट लिपिड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द पेपर क्रोमेटोग्राफी। अमाइनो एसिड्स को आप पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी अलग कर सकते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से भी अलग कर सकते हैं। ड्रग्स को आप पेपर से भी अलग कर सकते हो, थिन लेयर से भी अलग कर सकते हो। कोई भी क्रोमेटोग्राफी जब आप पढ़ोगे, सो एज पर योर सिलेबस एंड एज पर द जनरल नॉलेज ऑल्सो, जो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो यही है कि क्या टेक्निक का प्रिंसिपल है, बिकॉज बहुत सारी तरीके की क्रोमेटोग्राफी है, देयर आर अबाउट 6, 7 to 8 टाइप्स। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कैसे काम करती है, एंड क्या उसकी एप्लीकेशंस है, किस चीज के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर कि उसको कैसे किया जाता है।
अभी तक हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पढ़ा है कि ये डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होता है कंपोनेंट्स का बिटवीन द टू फेजेस, उनके हिसाब से जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. एनी डाउट टिल हियर? नो मैम. डू एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो मैम. ओके, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा अभी तक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में. अब हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपकी कोटिंग होती है ग्लास के ऊपर, ठीक है, जिसको आप इवनली स्प्रेड करेंगे, वो होती है अबाउट 0.25 mm की होती है उसकी थिकनेस. अप्रोक्सीमेटली 2.25 mm की थिकनेस होती है जेल की, जिसको आप इवनली स्प्रेड करते हैं अपनी ग्लास के ऊपर. इन सम ऑफ द केसेस जो ये ग्लास होता है उसको प्लास्टिक पेपर से भी, प्लास्टिक प्लेट से भी रिप्लेस किया जाता है. तो अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं और वहां पर प्लास्टिक प्लेट लिखा हुआ है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज इन सम ऑफ द केसेस, इन सम ऑफ द लेबोरेटरीज, इवन द प्लास्टिक प्लेट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ ग्लास प्लेट. ठीक है जी? इज इट फाइन? जी मैम. ठीक है. Yes, अब जो ma'am. क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल होता है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, दैट कैन बी वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, वो सब्सटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं आपके. नाउ आप जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं फॉर द मोबाइल फेस, दैट इज अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द रिसर्चर. जो आपका चॉइस है, आप उस हिसाब से कोई भी सॉल्वेंट मिक्सचर डाल सकते हैं. ठीक है, एंड देन द सेपरेशन विल बी बेस्ड अपॉन द एड्सॉर्प्शन, partition, gel filtration or the ion exchange process. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या है पेपर से? हाँ, ये क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल के बाद जो आपने टॉपिक लिया है वो प्लीज रिपीट कर दीजिए. क्या बच्चे, आप थोड़ा सा तेज बोलो, मेरे को आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है. मैम ये जो आपने बताया ना कि मतलब हम सेपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ, मैंने बताया बच्चे, जो सेपरेशन है वो किस बेसिस पे होएगा? एड्सॉर्प्शन, जो मैंने आपको बताया डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के बेसिस पे. ठीक है, और उनका पार्टीशन कोएफिशिएंट है उसके बेसिस पे, और उनकी आयंस एक्सचेंज, जेल के आपस में आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, आयन एक्सचेंज प्रोसेस के बेसिस पे. हो सकता है कि सेपरेशन इनमें से सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करे, हो सकता है सेपरेशन में मिक्सचर ऑफ प्रोसेसेस फॉलो हो, बिकॉज इट फॉलोज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस. सो एडवांटेज क्या है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का? द एडवांटेज ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज इट इज वेरी कन्वीनियंट. कन्वीनियंट मतलब इजी है यूज करने के लिए. आपने सिर्फ एक ग्लास प्लेट के ऊपर अपने सिलिका जेल को लोड कराया, उसके ऊपर सैंपल डाला, तो वहां पर सैंपल अपने आप ही डिफरेंट साइज, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएगा. आपको मैन्युअली बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा. एंड द अदर एडवांटेज इज द रैपिड, इट इज वेरी फास्ट. ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है. 24 घंटे 2 घंटे की टेक्निक नहीं है. आफ्टर सम टाइम द सेपरेशन इज डन एंड द मेथड और द टेक्निक इज ओवर एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स. ठीक है, उसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है कि इसकी हाई रेजोल्यूशन भी होती है. हाई रेजोल्यूशन का मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत हद तक एक्यूरेट भी होते हैं. ओके, इसी वजह से या इन्हीं एडवांटेज की वजह से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की आपको सेपरेशन करनी होती है लेबोरेटरी के अंदर, it is one of the most preferred technique for the separation of the organic molecules in the laboratory, because of its convenience, because of its rapid result, and because of the high resolution and the accuracy of the results. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So यहाँ तक we have covered the thin layer chromatography की introduction. How is it done? So how this technique is performed experimentally and the applications of the TLC. Now we have another topic which says high performance thin layer chromatography. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ी? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी.
अब एक होती है HPLC, नाम सुना है सभी ने HPLC का? यस मैम। हाँ, HPLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की ही एक फर्दर ब्रांच होती है। इसका HPLC का मतलब से क्या क्लियर हो रहा है? ज्यादा इससे एडवांस्ड है कि कम एडवांस्ड है? और एडवांस। मोर एडवांस्ड है क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है हाई परफॉर्मेंस। So that means the performance of high HPLC is better than that of the TLC. अब before coming on to the HPLC, हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में जो पढ़ा है, क्या आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का किसी बच्चे को कोई लिमिटेशन लग रही है कि इसके ये नुकसान भी हो सकते हैं? हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए, कोई नुकसान भी हो सकते हैं? हाँ जी, एनीवन ट्राई करो बच्चे। क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं इसकी, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं? अच्छा, किस चीज के लिए, किस चीज को सेपरेट कर रहे हो आप? टीएलसी से किस चीज को सेपरेट कर रहे हैं? अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स। और वेरी गुड। और अगर हम अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर रहे हैं या लिपिड्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो हमने एक केमिस्ट्री में टर्म पढ़ी है बेसिक क्लासेस के अंदर, आइसोमर्स की। आइसोमर्स पता है? यस मैम। आइसोमर्स, व्हाट आर आइसोमर्स? Isomers, they are your molecules जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है। हाँ, कौन आंसर दे रहा है बच्चे, बोलो। मैम मैं ये कह रही थी कि जो आइसोमर्स होते हैं ना, वो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मतलब इनको ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और इनका सेम एटम नंबर होता है। हाँ, वेरी गुड, कुछ हद तक करेक्ट है। आइसोमर्स आपके वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, ठीक है। जिन आयंस का या जिन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन वो जो उनकी अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो डिफरेंट है, ठीक है। जो उनकी स्पेशियल अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट, बट नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है एलिमेंट के अंदर। जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, ओनली देयर दिस थिंग अरेंजमेंट इन द स्पेस इज डिफरेंट। और एक टर्म होती है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स वो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज तो समझ में आता है ना? यस मैम। ठीक है, तो एनेंशियोमर्स और आइसोमर, अब किसी भी मॉलिक्यूल के एनेंशियोमर और आइसोमर हो सकते हैं। सो बिकॉज उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अनेबल टू सेपरेट द टेल द डिफरेंस बिटवीन द एनेंशियोमर्स या और आइसोमर्स में। अब आपका जो मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, सपोज आप अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर रहे हो, आपका जो प्रोटीन का मिक्सचर है, अगर उसके अंदर किसी भी अमाइनो एसिड्स के आइसोमर प्रेजेंट है, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर वो जो आइसोमर हैं या उस वो जो एनेंशियोमर्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपको आरएफ वैल्यू है, जो पार्टीशन कोफिशिएंट है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो पहले से पता होना चाहिए, तो किसी का भी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो पहले से आइडेंटिफाइड होना चाहिए, बिफोर हैंड आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपका यू विल नॉट बी एबल टू, जब वो सेपरेट हो जाएंगे पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी, और अगर आपको पार्टीशन कोफिशिएंट नहीं पता है देन यू विल नॉट बी एबल टू सेपरेट देम, ठीक है जी।
So these are the two disadvantage of the TLC, that is thin layer chromatography. क्लियर है ये सभी को? यस मैम। यस एनी मैम। डाउट टिल here? Any doubt till here? डिसएडवांटेज मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार अगर आप रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्योर, मैं बोल रही हूँ बच्चे, हम कोई भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनका नेचर में उनके आइसोमर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और उनके एनेंशियोमर फॉर्म भी प्रेजेंट हो सकती है। आइसोमर्स वो दो मॉलिक्यूल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम सब कुछ सेम है, लेकिन उनकी सिर्फ जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, सपोज करो एक में 1 2 3 पोजीशन पे CHH आ रहा है और दूसरे में उसके आइसोमर के अंदर HCH आ रहा है, तो ऑल्दो दोनों में CH2 ही फॉर्मूला है बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स दे आर आइडेंटिकल, लेकिन जो CHH की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो गई। ठीक है, इसी तरीके से एनेंशियोमर होती है मिरर इमेज। मिरर इमेज तो समझते हो ना? जी जी। ठीक है, तो मिरर इमेज और आइसोमर्स जो होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर, हमने बोला है कि जो सेपरेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उनकी एड्सॉर्प्शन की वजह से और उनके पार्टीशन कोफिशिएंट की वजह से। आइसोमर्स का पार्टीशन कोफिशिएंट सेम हो सकता है, ठीक है, आइसोमर्स का साइज तो बिल्कुल आइडेंटिकल होएगा यस मैम। क्योंकि उसका नंबर ऑफ एटम सेम है, राइट? तो आइसोमर्स जो है वो साइज के बेसिस पर अलग नहीं होते हैं। हमारा तो क्रोमेटोग्राफी का एम ही क्या है, हम कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं। तो आइसोमर्स अगर अलग अलग नहीं हुए तो हमारा कंपोनेंट्स के सभी मिक्सचर अलग अलग नहीं हुए, सो दैट मीन्स हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो हम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, सो इस फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से इट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द आइसोमर एंड द एनेंशियोमर फॉर्म, और ये उनको सेपरेट नहीं कर पाता। ओके, ठीक है, यस मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बच्चे। हाँ जी, एनी अदर डाउट टू एनीबॉडी? और किसी को कोई डाउट है? मैम फिर इससे हमारे रिजल्ट में भी उसमें आएगा? हाँ जी, इससे फिर हमारे रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आएगी? हाँ, हमारे रिजल्ट में प्रॉब्लम आएगी बिकॉज बच्चे हो सकता है अगर उसने हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि ग्लास प्लेट के ऊपर हमारे को अलग अलग साइज दिखने चाहिए, है ना, अलग अलग स्पॉट्स दिखने चाहिए। तो अगर आपको उसने आइसोमर्स को डिफरेंट ही नहीं किया तो वो आपको स्पॉट्स अलग अलग तो नहीं दिखेंगे उसके। हो सकता है कि वो स्पॉट्स को डिफरेंट कर ही ना पाया हो सकता है उसने कंपोनेंट्स को एक ही जगह पर एक्यूमुलेट कर दिया हो, तो वो बहुत डार्क नजर आएगा। फिर मैम इससे हमारे सोल्यूशन में कोई वो तो नहीं हो जाएगा नुकसान कि मतलब सोल्यूशन ही सही नहीं है या फिर सिलिका जेल जो है वो अच्छी नहीं सोल्यूशन है? का कुछ नहीं है इसके अंदर। समझो, इसके अंदर आप क्रोमेटोग्राफी इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग करना है, ठीक है, लेकिन अगर आपके आइसोमर्स प्रेजेंट हैं तो आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हुए ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग अलग हुए ही नहीं, देन देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दैट क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि जो आपका एम है टेक्निक का वो फुलफिल नहीं हुआ। तो आपका दैट मीन्स रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट आया। I have shared a screen with you. Can you guys see that? यस मैम। स्क्रीन पे आपको नीचे ए जहां लिखा हुआ है कैपिटल ए, उसके साथ में 3 डार्क स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। यस मैम। ये सपोज करो एक जेल की शीट है जिसके ऊपर यहाँ 3 सैंपल्स को लोड कराया गया है स्पॉट में, ठीक है। नेक्स्ट में देखो कि यहाँ से जो नीचे से स्पॉट्स हैं वो आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे होंगे, और ऊपर जहाँ 2.54 nm लिखा हुआ है उसके नीचे थोड़े थोड़े स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। जी मैम। दैट मीन्स Yes, वहां पर ma'am. सेपरेशन हो गई। आई एम शोइंग यू द फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज में ऊपर कोई अलग अलग बैंड्स ब्लैक कलर के नहीं है,
ठीक है, सेकेंड इमेज में वो बैंड नजर आ रहे हैं और हर एक जो ब्लैक स्पॉट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी RF वैल्यू लिखी हुई है, नजर आ रही है। यस मैम। लेफ्ट और राइट में वो RF वैल्यू लिखी हुई है। जब आपने इसकी स्टेनिंग कराओगे, ठीक है, तो उस हिसाब से वो आपको कलर्ड, वो स्पॉट्स आपको अच्छे से विजुअलाइज होंगे, बिकॉज यू कैन सी द कलर्ड स्पॉट्स। नजर आ रहे हैं, पिंक कलर, वाइट कलर। यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जेल पे RF वैल्यू के अकॉर्डिंग सारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो गए। अब सपोज करो जहां पर RF वैल्यू 86 लिखा हुआ है, फर्स्ट स्पॉट जो है, ठीक है, ये किसी A और B कंपोनेंट की दोनों की RF वैल्यू, क्योंकि जो आइसोमर्स हैं, ठीक है, आइसोमर्स का अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, तो उनकी RF वैल्यू कुड बी सिमिलर। अब जब RF वैल्यू सिमिलर है, दो की 0.86 है, तो वो तो एक ही जगह पर जाके सेपरेट होंगी ना जेल पे। जब वो हाँ एक जी ही मैम। जगह पर फॉर्म हो रहे हैं या फिर एक ही जगह पर दोनों बैंड बना रहे हैं, दैट मीन्स कि उनके अलग अलग स्पॉट्स हमको नहीं दिख रहे हैं, विच मीन्स कि हम उन दो को सेपरेट ही नहीं कर पाए हैं। और जबकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था वो दैट वाज कि आप अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, किसका क्वेश्चन था? आई जी गेस संदीप ने पूछा था। जी मैम। ठीक है संदीप, क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है बच्चे, एनी डाउट टू एनीबॉडी एल्स? To study the topic of thin layer chromatography, although the reading world is open for you, you may read from anywhere you wish to, but for the references you can read the books, you can read the book MN Chatterjee। आपके पास MN Chatterjee के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। You can go and read the topic in Voight and Voight also। आपके पास एक वॉइट एंड वॉइट की बुक है, उसके अंदर भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो रीड इट फ्रॉम द दिस विल्सन एंड वॉकर। you have one book, Wilson and Walker of biochemistry, you can also read it from there। apart from this और भी बायोकेमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स हैं, लेनेंजर है, स्ट्रायर है, जिसके अंदर ये टॉपिक गिवन है। आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपने कहाँ से पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं से पढ़ना जरूर है। ठीक है, ये टॉपिक जी मैम। सत्यनारायण में मिल जाएगा मैम? बिकॉज मेरे पास कोई ये सत्यनारायण बच्चे, ये वाली जो बुक्स है ना, जो मैंने आपको MN चैटर्जी बताया है, स्ट्रायर बताई है और लेनेंजर बताई है, इनकी सबकी PDF जो है आपको ऑनलाइन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। आप इनको डाउनलोड करो, बिकॉज दिस ईयर एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, है ना। वैसे तो आपकी लाइब्रेरी में प्रेजेंट होती थी, आप वहां से करा सकते थे, बट बिकॉज यू डू नॉट हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी, सो यू कैन डाउनलोड द ई बुक्स। ओके मैम। नहीं, आपको हमने ये लाइब्रेरी से बुक इशू करवा दी है हमने थर्ड सेमेस्टर की। हाँ जी, हाँ जी, आई अंडरस्टैंड बच्चे, लेकिन जो नहीं करवा पाए हैं, दोज हु आर स्टिल एट होम और दोज हु कैन नॉट गो टू द लाइब्रेरी, वो लोग ऑनलाइन भी अगर आप अपनी बुक करवा के अगर इसी पे पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो इट इज फाइन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई बुक नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में, लेट मी नो, आई विल अपलोड द बुक ऑन फेडिना। Okay, I'll upload the soft copy। उसके बाद आपकी मर्जी है, if you want to take the print out, पूरी की पूरी बुक लेने की जरूरत नहीं है। if you want to take the print outs, आप अपने desired topic जो आपके सिलेबस के उनके print outs ले लो, और if you are reading on the system तो आप उस बुक से वहीं पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, so this is the end of your class for today। tomorrow we will do the next topic, HPLC। the class will be at the same time, so stay safe and read this topic। in case of any doubts you can ask the questions tomorrow। okay मैम मेरा फिडिया नहीं लॉगिन हो रहा है। बच्चे एक बार एडमिन डिपार्टमेंट में कॉल करके बात कर लो। ओके मैम। ओके, जी जी, थैंक ठीक यू। है, ओके बच्चे, वेलकम। so this is the end of the class, you can leave the room and